We are going to start with the problem number 7. Amar and Akbar were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 25 is given below. All the assets except the cash will go to the new balance sheet and cash will go to a separate ledger account. Creditors will go to the new balance sheet. Capital of Amar Akbar will go to the respective partners' capital account. General reserve and profit and loss account will be distributed between the both partners in the profit sharing ratio, and Amar's loan account will go to new balance sheet from which the payment of the loan will be made. Then we have got certain adjustments. Anthony is supposed to bring 48,000 as a capital. After that, the new adjustment is there. Goodwill was raised in the books of the firm for rupees 18,000. इसके पहले की जो भी हमने एडजस्टमेंट देखे हैं इसके अंदर गुडविल की अमाउंट हमको प्रॉब्लम में दी जाती थी या तो वी हैड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल। लेकिन इस प्रॉब्लम में गुडविल का एडजस्टमेंट ऐसा बताता है कि गुडविल हैज़ बीन रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसका क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है हम आगे चल के देखते हैं। बाद में बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ, स्टॉक का डेप्रिसिएशन हुआ है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है, एंड अमर का लोन का रिपेमेंट हुआ, एक नया एडजस्टमेंट आया है। नाउ लेट्स गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग पार्ट। बिल्डिंग 1,00,000 रुपया, बैलेंस शीट असेट, फर्नीचर 20,000 रुपीज़ बैलेंस शीट असेट, office equipment 20,000 rupees balance sheet asset, data 63,000 rupees balance sheet asset, stock 84,000 balance sheet asset, cash will go to the separate account. Now let's go to the liability part. Creditors will go to balance sheet liability. Amar and Akbar will go to their respective partners capital account. General reserve will be distributed between the both partners in the ratio of 3:2. Amar will get 12,000. Akbar will get rupees 6,000. Then balance in profit and loss account rupees 6,000 will be distributed between Amar and Akbar in the ratio of 2:1. Amar will get 4,000 rupees. Akbar will get 2,000 rupees. Amar's loan account 36,000 which will go to the new balance sheet inner column. Now let's go to the adjustment part. Anthony is to bring 48,000 capital, business में 48,000 रुपीज़ आए इसलिए हमें कैश के डेबिट में लिखा, और कैश दिया किसने, एंथोनी ने दिया, इसलिए हम एंथोनी के क्रेडिट में लिखेंगे 48,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू एंथोनीज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एडजस्टमेंट है गुडविल वॉज रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसके पहले के जो भी एडजस्टमेंट्स होते थे उसमें गुडविल की अमाउंट हमको प्रॉब्लम में दी जाती थी या तो वी हैड टू कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट जो पार्टनर कैश में लेके आता था। लेकिन यहाँ पे पार्टनर ने गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है, गुडविल हैज़ बीन रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये गुडविल रेज करके हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। Amar will get rupees 12,000 and Akbar will get rupees 6,000 which will be credited to the capital account. तो यहाँ पे एंट्री हमारी है गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है 1,12,000 रुपया। Earlier the value was 1 lakh rupees, now it is 1,12,000 rupees. 12,000 has been appreciation which is a notional gain which will go to revaluation credit. After that there is a stock depreciation rupees 6,000. Then RDD maintained at 1,800 rupees. आउट ऑफ 63,000 रुपीज़ 1,800 रुपया डूबने के चांसेस है। एडजस्ट ओल्ड बैलेंस शीट में उन्होंने दिया है कि
पहले 3,000 रुपये डूबने के चांसेस थे, हमको एस्टिमेट था कि 3,000 रुपये डूबेगा, अभी हमें लगता है कि 1,800 रुपये डूबेगा। डेट मीन्स 1,200 रुपये नहीं डूबेगा। एक किस्म का नोशनल गेन है, जो कि हमने पहले इसको राइट ऑफ किया था, अब इसको राइट बैक करेंगे हम। तो 1,200 रुपया इज a notional gain will come on the revaluation account credit side. अमर्स लोन हैज़ बिन रिपेड। अमर का लोन 36,000 रुपीज़ है, जो हमने पेमेंट किया, इसलिए बैलेंस शीट में से लाइबिलिटी में से निकल गया, जो कि पेमेंट हो चुका है। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री आती है, तो इसकी एंट्री बनती है अमर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एडजस्टमेंट्स पार्ट। अब हम टोटलिंग करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 13,200, डेबिट साइड का टोटल 6,000 रुपीज़। सो बैलेंसिंग फिगर ऑफ 7,200 रिप्रेजेंट्स द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट which will be credited between the both partners in the ratio of 2:1. Hence Amar will get 4,800 rupees, Akbar will get 2,400 rupees. तो यहाँ पे हमें जनरल एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 4,800 टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट 2,400. After that we are coming to the balancing part of partners capital. एंथोनी का बैलेंस 48,000, अकबर का बैलेंस 80,400, अमर का बैलेंस है 128,800 विच विल टेक ऑन द डेबिट साइड। हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला। दिस विल गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अमर, अकबर, एंथोनी, इन तीनों का हमने टोटल करके आउटर कॉलम में लिखा। नाउ वी प्रोसीड टू द गुडविल अकाउंट। गुडविल डेबिट 18,000. This 18,000 will go to balance sheet asset side. Then we come to the cash account 64,000 rupees. हमने अमर का लोन रिपे किया 30,000 रुपीज़. So we have got a balance of 38,000 which will go to the balance sheet asset side. हमने एसेट का टोटल किया 3,47,200. हमने लाइबिलिटी का टोटल किया 347,200. So with this we have completed the problem.